Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we'll learn about the accounting method in amortized analysis. So let's begin. Now, aggregate method में हमने देखा था कि aggregate method में हर एक ऑपरेशन को जो भी हम sequence of operations परफॉर्म करते हैं उसमें हर एक ऑपरेशन को हम सेम कॉस्ट असाइन करते हैं. बट अकाउंटिंग मेथड में क्या होता है, डिफरेंट ऑपरेशंस को हम डिफरेंट चार्जेस असाइन करते हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशंस को हम ज्यादा चार्ज असाइन करते हैं, कुछ ऑपरेशंस को हम कम चार्ज असाइन. And this charge that we assign to an operation, this charge is known as the amortized charge or the amortized cost. So in accounting method, we assign different charges to different operations, with some operations charged more or some operations charged less than they actually cost. And this cost that we assign to an operation is known as its amortized cost. So this is how it differs from the aggregate analysis, जहाँ पे हर एक ऑपरेशन को हमने सेम चार्ज असाइन किया था. Now, जब भी हमने किसी ऑपरेशन को कोई चार्ज असाइन किया, दैट इज जब भी हमने किसी ऑपरेशन को एक अमोर्टाइज कॉस्ट असाइन करी, एक तो हो गई उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट और एक हो गई उसकी एक्चुअल कॉस्ट. नाउ whenever amortized cost for any operation is greater than the actual cost, उस केस में जब हम डिफरेंस लेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट का एंड एक्चुअल कॉस्ट का, तो जो वैल्यू बचेगी उसको हम कहते हैं क्रेडिट. So credit is actually the difference of the amortized cost and the actual cost. And इस क्रेडिट को हम यूज करते हैं उस केस में जब हमारी amortized cost less होगी than the actual cost. So this credit helps us to pay for those operations when the amortized cost for any operation is less than the actual cost. So this fundamental will actually be clear with the help of an example. So दो जो examples हमने aggregate analysis में देखे थे, one was using the stack and one was using the incrementing binary counter. Same examples पे हम accounting method implement करेंगे. Now one thing to note over here is that the total amortized cost for a sequence of operations should always be an upper bound on the total actual cost of the sequence. Let's say अगर हमने किसी पे n operations perform करें, so in n operations की जो actual cost होगी और in n operations की जो amortized cost होगी, so this amortized cost should always be greater than the actual cost for a sequence of n operations. So this means let actual cost for any ith operation be Ci. Let Ci denote the actual cost for any operation and let amortized cost for any ith operation be denoted by Ci cap. So when we say कि जो summation होना चाहिए है total amortized cost का should always be an upper bound of the total actual cost, that means कि जब हम summation करेंगे for a sequence of n operations starting from 1 to n, इन सब की जो summation होना चाहिए amortized cost का, this should always be greater than or equal than the actual cost, but it should never be less than the actual cost. Right? So this means कि जो क्रेडिट होगा हमारा, क्रेडिट का क्या मतलब है, जब amortized cost और actual cost का हम डिफरेंस लेंगे, that value is the credit. So this credit value that is जो भी हमारी total amortized cost है minus total actual cost. This credit value should always be non-negative. क्रेडिट हमारा कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं पहुंचना चाहिए. दिस क्रेडिट शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट नोट दैट वी नीड टू लुक ओवर हियर. सो क्रेडिट वैल्यू जो है वो हमारी नॉन नेगेटिव उसी केस में होगी जब अमोर्टाइज कॉस्ट का जो समेशन होगा वो हमेशा अपर बाउंड प्रोवाइड करेगा दैन दी एक्चुअल कॉस्ट. सो इसी तरीके से हमें अमोर्टाइज कॉस्ट असाइन करनी है टू एन ऑपरेशन, दैट क्रेडिट शुड नेवर गोज टू नेगेटिव. Now let's take the stack example जो हमने aggregate analysis में देखा था, augmented stack. So basically stack में हमने तीन operations देखे थे, push, pop and multi-pop.
मल्टीपॉप जहां पे हम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैक। सो पहले इनकी हम एक्चुअल कॉस्ट देख लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या है पुश ऑपरेशन की? एक्चुअल कॉस्ट है पुश ऑपरेशन की 1। पॉप की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 1। एंड मल्टीपॉप की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? मल्टीपॉप की एक्चुअल कॉस्ट डिपेंड करती है कि कितने एलिमेंट्स हम पॉप कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैक और कितने एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल है ऑन द स्टैक। अगर जो एलिमेंट्स हम पॉप करना चाह रहे हैं फ्रॉम द स्टैक are greater than the number of elements which are already on the stack, then the min of these two values will actually be the cost of the multipop. So this we have already seen in case of the aggregate analysis. Let's say अगर stack पे 10 elements है और हम 8 elements को pop करना चाह रहे हैं, then the cost of multipop will be 8. And अगर stack पे 8 elements है और हम 10 elements को pop करना चाह रहे हैं, then the cost of multipop will again be 8. So depending कि जिनमें से minimum value किसकी है, that will be the cost of multipop. अब ये तो हो गई इनकी एक्चुअल कॉस्ट। नाउ लेट्स असाइन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टू दीज ऑपरेशंस। सो लेट्स से द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर पुश ऑपरेशन, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर पुश ऑपरेशन बी 2 एंड द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर पॉप एंड मल्टी पॉप बी 0. So this amortized cost is the random cost that we have assigned to an operation, and this is the actual cost for the stack operations. Now let's implement the accounting method. कि accounting method को use करके हम कैसे amortized cost निकालेंगे for the sequence of n operations. Suppose हमने sequence of 4 push and pop operations करे on an initially empty stack. So let's say if this is my stack, तो यहाँ पे हमने लिए operations कि हम कौन से operations perform कर रहे हैं. Here is the amortized cost for that operation. Here is the actual cost of the operation and here is the credit. Let's say सबसे पहले हमने operation perform करा on the stack push. Now obviously the first operation that will be performed will push only, क्योंकि जब तक हम push नहीं करेंगे तब तक हम pop को implement नहीं कर सकते. So push will be the first operation that we will implement on the stack. तो stack S पे let's say हमने 5 को push किया. Again we implement push operation. Now let's implement pop operation from stack S. Again let's implement push operation. Again let's implement pop operation. Again let's implement pop operation. Let's implement push operation. And let's implement pop operation. So हमने total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 operations perform करे, 4 push operations and 4 pop operations. Now let's write its amortized cost. तो जब हमने push operation करा, push operation को हमने क्या amortized cost assign करी है? Push operation को हमने amortized cost assign करी है, that is 2. So इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जहां जहां पे अभी हमने push किया है वहां पे हम amortized cost लिख देंगे as 2. amortized cost हुई यहाँ पे 2. एक्चुअल कॉस्ट क्या है इस पुश ऑपरेशन की? एक्चुअल कॉस्ट है 1. सो एक्चुअल कॉस्ट पुश ऑपरेशन की क्या है? 1. सो यहाँ पे 1 आ गया. देन अगेन हमने इंप्लीमेंट करा पुश. पुश की amortized कॉस्ट हो गई 2. एक्चुअल कॉस्ट हो गई 1. देन हमने इंप्लीमेंट करा पॉप. पॉप की amortized कॉस्ट क्या साइन करी है हमने? 0. एक्चुअल कॉस्ट क्या है इसकी? 1. अगेन हमने किया पुश ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन में हमने amortized कॉस्ट 2, एक्चुअल कॉस्ट 1. अगेन पॉप, amortized कॉस्ट 0, एक्चुअल कॉस्ट 1. अगेन पॉप, amortized कॉस्ट 0, एक्चुअल कॉस्ट 1. देन पुश, amortized कॉस्ट 2, एक्चुअल कॉस्ट 1. And then pop, amortized cost 0 and actual cost as 1. Now let's calculate the credit. Credit is difference of amortized cost. Let's denote this by CI cap and this as CI. The difference of CI cap and CI is the credit. Now first case में जब हमने देखा amortized cost, इस केस में क्या है? हमारी ज्यादा है than the actual cost. So हमारा credit value क्या आएगी? Positive value आएगी, which is 2 minus 1 comes out to be 1. So this is our credit for first push operation. Again हमने second push operation किया. Again
अब इस सेकंड पुश ऑपरेशन से हमारा क्रेडिट क्या आ गया 1, दिस इज अगेन 2, 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1। सो एक क्रेडिट तो हमको इससे मिल गया और एक क्रेडिट जो हमने पहले वाले पुश से मिला था, तो 1 + 1, टोटल क्रेडिट अब हमारे पास कितना इकट्ठा हो गया, 2 क्रेडिट हमारे पास इकट्ठा हो गया। नाउ लेट्स कम टू पॉप। अब पॉप ऑपरेशन में क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट यहाँ पे लेस है देन दी एक्चुअल कॉस्ट। अब अमोर्टाइज कॉस्ट लेस है एक्चुअल कॉस्ट से, तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे वो क्या आ जाएगा -1। सो क्रेडिट की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई इससे। बट हमारा जो टोटल पॉजिटिव क्रेडिट अब तक कितना है अवेलेबल, 2 है। सो 2 तो ऊपर वाला क्रेडिट आ गया, माइनस हमें कितना क्रेडिट यहां से मिला, 0 - 1 -1। सो -1 क्रेडिट हमें यहां से मिल गया, तो टोटल क्रेडिट अब हमारे पास कितना है 1। दिस क्रेडिट फैक्टर शुड ऑलवेज कम आउट टू बी नॉन नेगेटिव। नाउ अगेन पुशेस की अमोर्टाइज कॉस्ट है 2, एक्चुअल कॉस्ट 1, क्रेडिट कितना आ गया 1, और 1 क्रेडिट हमारे पास ऊपर से आ रहा है। सो 1 + 1, टोटल क्रेडिट कितना हो गया 2। अगेन पॉप ऑपरेशन में 0 - 1 क्रेडिट कितना आ गया -1, टोटल क्रेडिट हमारे पास कितना है 2 है। सो 2 - 1, टोटल क्रेडिट हमारे पास आ गया 1। अगेन 0 - 1 क्रेडिट कितना आ गया इससे -1, और अब तक हमारे पास कितना है 1। सो 1 - 1, टोटल क्रेडिट इज 0। नाउ पुश ऑपरेशन हुआ 2 - 1, ऊपर से अब तक हमारे पास कोई बैलेंस क्रेडिट नहीं है, सो हमारे पास सिर्फ 1 ही क्रेडिट मिला पुश ऑपरेशन करके। देन अगेन पॉप 0 - 1 क्रेडिट कितना हो गया -1। सो 1 - 1 क्रेडिट जो हमें ऊपर से मिला और -1 जो इस पॉप ऑपरेशन से मिला, सो हमारे पास क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट हो गया इसका 1 - 1 विच कम्स आउट टू बी 0। सो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 4 पुश ऑपरेशंस करे और 4 पॉप ऑपरेशंस करे, जिससे हमारा जो टोटल क्रेडिट एंड में कितना आ गया 0 आ गया। नाउ इफ आई कैलकुलेट द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर दीज ऑपरेशंस, नाउ इस केस में हमने टोटल 4 पुश ऑपरेशंस करे हैं, 4 पुश ऑपरेशंस, 4 पॉप ऑपरेशंस एंड 0 मल्टी पॉप ऑपरेशंस। सो मल्टी पॉप जो है वो बेसिकली पॉप ऑपरेशन ही है। नाउ इफ आई कैलकुलेट द समेशन ऑफ टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर द सीक्वेंस ऑफ n ऑपरेशंस, राइट। तो यहां पे n क्या है, 4 पुश ऑपरेशंस हमने करे, 4 पॉप ऑपरेशंस करे। सो टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर पुश ऑपरेशंस कितनी आ गई, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर 4 पुश ऑपरेशंस, n की वैल्यू क्या हो गई 4, और उसके लिए टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी आई है 2 + 2 + 2 + 2। हमारी टेबल में से अगर हम देखें, हमारे पास 4 पुश ऑपरेशंस है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो इन चारों की हमारे पास टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या आ गई 8 आ गई। सो ये हो गई फॉर पुश ऑपरेशंस। अगर हम देखें फॉर पॉप ऑपरेशंस के लिए टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी हो गई, फोर पुश पॉप ऑपरेशंस हमने करे हैं और उसकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है 0 0 0 एंड 0। सो अगर हम टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकालें फॉर n push and n pop operations, this comes out to be 2 + 2 + 2 + 2, which comes out to be 8, and this 8 is nothing but 2 × 4, and 4 क्या है यहाँ पे, हमने जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करे थे। सो बेसिकली अगर हमने 4 पुश ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं तो हमारी टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी आ रही है 2 × 4 which is 8। तो अगर हम n पुश ऑपरेशंस एंड n पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारी टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ n। सो दैट इज टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अगर हम 2 को ड्रॉप कर दे कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n। So this is the total amortized cost
फॉर द अकाउंटिंग मेथड। नाउ इफ वी कैन रिकॉल, जो हमारा एग्रीगेट मेथड था उससे हमारी जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आ रही थी, उस केस में हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या आ रही थी, ऑर्डर ऑफ 1। बट ये ऑर्डर ऑफ 1 जो है ये कॉस्ट पर ऑपरेशन थी, राइट। बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग मेथड हम पर ऑपरेशन की कॉस्ट नहीं देखते, हम ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं फॉर द सीक्वेंस ऑफ n ऑपरेशंस। सो बेसिकली अकाउंटिंग मेथड में क्या हो रहा है, हम हर एक पुश ऑपरेशन के लिए तो हमारा क्रेडिट बिल्ड हो रहा है और हर एक पॉप ऑपरेशन के लिए जो क्रेडिट बिल्ड हुआ है उसको हम यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि कभी भी जितने हमने पुश किए हैं उससे ज्यादा पॉप तो हो नहीं सकते, एंड पुश से आपका क्रेडिट हमेशा बिल्डअप हो रहा है, तो जो आपकी टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट रहेगी फॉर द सीक्वेंस ऑफ n पुश और n पॉप ऑपरेशंस विल ऑलवेज बी एन अपर बाउंड ऑन द टोटल एक्चुअल कॉस्ट। जो क्रेडिट वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि जो हमें पुश से गेन हो रहा है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं पॉप की कॉस्ट को पे करने के लिए। सो बेसिकली पॉप पुश ऑपरेशन की कॉस्ट को लिटिल एक्स्ट्रा चार्ज करके हम पॉप ऑपरेशन को अपना फ्री में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। सो नाउ अगर हम जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं उनको देखें, नाउ वी कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी दैट क्रेडिट हेल्प्स अस टू पे फॉर ऑपरेशन जब अमोर्टाइज कॉस्ट आपकी लेस है देन द एक्चुअल कॉस्ट। यही हमने देखा जब हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं उस केस में जो अमोर्टाइज कॉस्ट है वो है 0 और एक्चुअल कॉस्ट क्या है 1। सो उस केस में अमोर्टाइज कॉस्ट के लेस होने की वजह से देन द एक्चुअल कॉस्ट जो क्रेडिट वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव हो रही है। इन दैट केस जो क्रेडिट हमारा पुश ऑपरेशन से गेन हुआ था उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस नेगेटिव क्रेडिट को पे करने के लिए, जिससे जो हमारी ओवरऑल क्रेडिट की वैल्यू है दैट रिमेन्स पॉजिटिव। So this is the stack example for the accounting method. In the next video, we'll look at the incrementing binary counter example for the accounting method. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.